معافی کے ساتھ خدا کے زندہ کلام کو پڑھیں گے اور اس پہ عمل کرنے والے کلام میں مسیح ہیں تو بالکل سب کو پتا ہے کہ مسیح ہے، تو صرف میں ہی نہیں بولتا رہوں گا بلکہ ہم کچھ سیکھیں گے خدا کے کلام۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ یہ میں نے ایک سوال ہے کہ آپ مسیح ہیں؟ بالکل بالکل۔ تو ہم مسیح کیوں ہیں؟ ہم مسیح کہتے ہیں تو ایک یہ سوال ہے کہ ہم مسیح کیوں ہیں اور مسیح کا مطلب کیا ہے، یسوع کا کیا مطلب ہے، مسیح کا کیا مطلب ہے اور ہم مسیح کیوں ہیں، یہ ایک مطلب سوال ہے۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ سوال جواب ہوگا، یہ ضروری نہیں کہ صرف آپ سنتے ہی رہیں، میں کوئی ٹی وی نہیں ہوں یا کوئی ایل سی ڈی نہیں ہوں کہ صرف میں بولتا جاؤں گا اور آپ سے کچھ نہیں پوچھتا۔ میں یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم مسیح کیوں ہیں، یہ سوال کوئی جواب۔ مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم مسیح اس لیے ہیں کہ ہم خدا کے خاندان میں شامل ہوتے ہیں اور گناہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمارا مسیح ہونا ضروری ہے، اس لیے ہم مسیح اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے یسوع مسیح پر ایمان لا کر بپتسمہ لیا، تب ہم مسیح ہیں۔ صرف مسیح گھرانے میں پیدا ہونے سے یا اس طرح مسیح نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے باپ دادا مسیح، بلکہ ہم جب یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور مسیح کے جیسا بنتے ہیں، جیسا مسیح ہے، جس طرح مسیح نے دنیا میں آ کے کیا 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 ہے، اس طرح دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری، تو اس کے جیسا بنتے تو ہم مسیح۔ ویسے نام کے آگے خالی مسیح کر جانا تو تب ہم مسیح ہیں، بلکہ مسیح کے جیسے کام کریں گے تب ہم مسیح۔ اور ایک سوال اور پوچھنا ہے کہ یسوع کا کیا مطلب ہے اور مسیح کا کیا مطلب ہے؟ خدا کا بیٹا۔ یسوع کا مطلب ہے نجات دینے والا اور مسیح کا مطلب ہے مسیح۔ آمین۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یسوع کا مطلب ہے نجات دینے والا اور مسیح کا مطلب ہے مسا کیا ہوا، جو ازل سے باپ نے مسا کر دیا، خدا کے باپ، یسوع مسیح کے باپ نے، خدا باپ، انہوں نے ازل سے مسا کر دیا جب وہ عدن میں جب یسوع سے خدا باپ نے دنیا بنائی، تبھی سے مسیح ان کے ساتھ تھے، تب سے وہ مسا کیے ہوئے تھے کہ وہ دنیا میں آئیں گے اور دنیا کو نجات دیں گے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات ہے۔ آج بھی مرکزی آیت ہماری متی کی انجیل اور اس کا 24 باب اور اس کی 14 آیت۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ آمین۔ یسوع مسیح سے پوچھا، ان لوگوں نے کہا کہ جب وہ زیتون کے پہاڑ تک بیٹھے تھے، کچھ شاگردوں نے پوچھا تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہے؟ ہمیں بتا دے کہ دنیا کا آخر کب ہوگا، کب تو آئے گا، تیرا آنا کب ہوگا۔ تو یسوع مسیح نے ساری باتیں بتا دی، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور وہ جال آئیں گے، لیکن یہ سب
बातें मुसीबतों का शुरू ही है। ये सारी बातें यीशु ने बता दी कि इस वक्त लोग तुमको ला कर उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतेरों को गुमराह करेंगे और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। ये सारी बातें बता दी, लेकिन खात्मा कब होगा? जब बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में हो जाएगी, तब खात्मा होगा। तो बेशक अभी ये कोरोना वायरस भी है और ये वो वक्त आ गया है कि वो जाल भी आ रहे हैं, ये सारी निशानियां पूरी हो रही हैं, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेंगे। तो ये वो भी लिखा है कि वो लोग तुम्हें उस वक्त क्या करेंगे, सजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल कर देंगे, कत्ल भी करेंगे। उसके सारा कुछ मतलब कि बता के उन्होंने कहा कि बादशाह की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। तो खात्मा अभी नहीं होगा, ये सब मुसीबतों का भी शुरू ही है सब, तो अभी खात्मा नहीं है। बेशक बहुत सारे लोग इस तरह कहते हैं कि बस यार ये आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त तो है, लेकिन मुनादी अभी रुक गई है। बहुत सी कौमें पहले 1700 सदी में इन्होंने मतलब कि ये किया शुरू। 2000 सदी से पहले दुनिया में जब यीशु मसीह आए तो आसमान पे जाते वक्त उन्होंने शागिर्दों को ये हुक्म दिया कि पक तुम जाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें दिया। तो जब उन्होंने ये बात ली खुदा यीशु मसीह से, तो कितने लोगों ने ये काम मिशन का शुरू किया? सिर्फ 12 भी नहीं थे, बल्कि 11 थे। एक ने वो गद्दारी की, यीशु मसीह को पकड़वा दिया और उसने फांसी दी और दे दिया। उसकी वजह से 11, तो 11 ने इस तरीक को शुरू किया। तो एक बंदा था मुकद्दस तुमार, जो हिंदुस्तान में भी आए, उन्होंने आकर यहाँ पे बना दिया। इस तरह से यहाँ पे आई। तो 12 शागिर्दों ने तमाम दुनिया में मुनादी कर दी, लेकिन आज तक देखिए कितनी मुसीबत होगी। जैसे एक घड़ी है ना, तो वो घड़ी तब चलती है जब मुसीबत फैलती है दुनिया में। तो दुनिया भी गोल है और घड़ी भी गोल है। तो तब टाइम हो गया था जैसे 15 मिनट होते हैं, तो इतनी दुनिया में मुनादी होगी। तो जब उनके बाद मुसीबत फैलती फैलती तो आधे घंटे तक आ गई। तो अभी सिर्फ आखिरी टाइम है, जैसे 5 मिनट रह गए। 5 मिनट पहले 11 पे है और ऐसे सुई आगे जानी है, दुनिया बढ़ गई। जब मुसीबत सारी दुनिया में, अभी सारी दुनिया में मुसीबत फैल गई है, सिर्फ 500 कौम रह गई है। 500 कौम में मुसीबत अभी तक नहीं बना किसी। अभी हमारे यहाँ में देखें, मैं ना गनीमत के पास गया, वहाँ पे किसी से मैंने पूछा यार कि आप मुस्लिमों को जानते हो? उसने कहा यार मैं जानता ही नहीं मुस्लिम को, मैं जानता नहीं हूँ उसके ईसाई कौन है, मुस्लिमों को मैं जानता ही नहीं जानता। तो हमारे जो पास रहते हैं वो नहीं जानते, तो दूर दूर लोग कैसे जानते हैं? तो मैंने ये देखा है कि अभी सिर्फ कितना टाइम रह गया,
थोड़ा टाइम रह गया कि यसुस ने आ जाना है, लेकिन हदीस ने एक बड़ी साजिश की जिसमें कलाम में लिखा है कि वो मुखालिफ मसीह जो आने वाला है, वो क्या करता है, वो ला रहा है, ठीक है। सारे मजहब एक हो गए। ये आपने देखा होगा कि कैथलिक वाला जो बड़ा हमारा ग्रुप है और बिशप फ्रांसिस जो ऑस्ट्रेलिया में वो भी और हिंदू भी और ये यहूदी भी, ये सारे मजहब एक हो गए। उन्होंने कहा कि कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, कोई मसला नहीं। तो उसकी वजह से ये मुसीबत फैलने लगी, क्योंकि वो किसी को बता नहीं सकते। अगर बताएंगे लड़ाई होगी तो वो सब कहते हैं सारा अमन चाहिए हमें, ना कि बात चाहिए, ना कि जंग चाहिए, बल्कि अमन चाहिए। तो अमन के चक्करों में उन्होंने ये मुसीबत को फैलाना भी बंद कर दिया। तो वो जो थोड़ा सा टाइम रह गया वो वहाँ पे रुक गया। बादशाही की रिकवरी जो बनाती तमाम दुनिया में हो रही है वो तेजी से बैठने, लेकिन अब क्या हो गया, रुक गया है इस वजह से कि यार हाँ ठीक है, जिधर कोई लगा सही लगा, बस ठीक है, किसी ने कोई काम ना करो, बस अपनी अपनी दुआ करो, ये तो खुदा देख ही है। लेकिन नहीं, उर्दू तक मसीह में नहीं आना, लेकिन बादशाही की बनाती तमाम दुनिया वो देखो एक इंसान का ख्वाब है मेरा सारे का कोई ना कोई ख्वाब होता है, कोई ख्वाब होएगा, कोई मतलब कि अगे फ्यूचर वास्ते सोचा है, नहीं सोचा उसी की मतलब कि फ्यूचर से देखिए सोचा है कि यार हाँ मैं मेरे को यहाँ होना चाहिए। जिस तरह मेरा भी एक ख्वाब थी कि मेरे को एक अच्छा जहा घर होए जिस तरह मैं रह रहा हमारी मेरी फैमिली एक अच्छी गड्डी हो, पैसे हो, इस तरह के ख्वाब हर एक जिंदगी के अंदर एक ख्वाब है। इसी तरह यीशु का भी एक ख्वाब है, खुदा का भी ख्वाब है। वो ख्वाब भी करने में यीशु की वजह कलाम मुकद्दस के विच लिखा है मुकाशवा 21 बात फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानित आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने सख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। आमीन। क्या होगा? वो क्या देखता है कि खुदा का कहमा क्या है, आदमियों के दरमियान है, तो वो उनका खुदा होगा, वो उनके लोग होंगे, तो वो उसका खुदा होगा। खुदा का ये ख्वाब है। क्या करो, क्या देखता हूँ कि फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पुरानी चीजें जाती रही और तब ना मातम और ये कुछ भी नहीं, क्योंकि पुरानी चीजें सारी खत्म हो जाएगी। ये दुनिया नहीं बनेगी, ये नया यरूशलेम आसमान से उतरेगा, नई दुल्हन की तरह रास्ता है। ये सारी बातें इसमें सारी बातें वो लिखी हैं। और खुदा का ये ख्वाब है कि मैं क्या करूं, आदमियों के दरमियान रहूं। जिस तरह साढ़े विच इमरान खान रह रहा है, जोड़ा भी काम होता है इमरान खान इमरान खान सारी दुनिया के पाकिस्तान के साथ है, लेकिन खुदा जो आसमान को आएगा फिर दुनिया का बादशाह खुदा इस चीज़ को करना साढ़े दरमियान करेगा। पुरानी चीज़ें सारी खत्म हो जाएंगी, ना मरेगा कोई तो ना कोई रोएगा किसी को, ना कोई दिल च दुख होएगा कि यार हाँ, ना गांधी भी करे ना कुछ। यह खुदा का ख्वाब है कि मैं आदमियों के दरमियान रहूँ। देखिए दूसरी का भी है क्या है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ,
ਇੱਥੇ ਸਾਫ ਵਾਜ਼ਿਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਤਬ ਆਏਗਾ तब खुदावंद यीशु मसीह आ जाएगा। तो जब बादशाह की मनादी तमाम दुनिया में हो जाएगी, तो अभी तक मेरे ख्याल से वो चर्च जो सिर्फ अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, बल्कि खुदा के कलाम को पूरे तरीके से नहीं सुनते, नहीं इस बादशाह की मनादी को पूरे तौर पर नहीं करते, वो होता है। तो ये गोस्पल और ये अरशाद आज़म यीशु मसीह के कलाम को फैलाना बहुत ज़रूरी है, तभी खुदावंद यीशु मसीह आएगा। तो मैंने देखा है कि हिस्ट्री में देखें तो जब जो मसीह हो जाता था ना, वो क्या करते थे, अपना सारा माल बेच के और शागिर्दों के कदमों में ला के रखते थे। तो शागिर्द क्या करते थे, उनकी सारा अखराजात भी पूरे करते थे। जब अपना घर बार सब कुछ खेत बेच के तो शागिर्दों के कदमों में ला के रखते थे, तो शागिर्द क्या करते थे, उसे एक नई मखलूक बना देते। और यीशु मसीह के लिए लोग मर जाते थे। उन्होंने ये जो बाइबल हम देख रहे हैं, खुदा का कलाम है, तो ये किस तरह हमारे पास आया, इसके बारे में कभी आपने सोचा है कि ये उर्दू में किस तरह हम पढ़ सकते हैं? क्योंकि ये यूनानी और अबरानी में था। वो कौन लोग थे जिन्होंने इसके बारे में ये उर्दू में से ट्रांसलेट किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया और इसे लिखा है? वो भी मिशनरी है, वो भी उन्होंने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को खुदा को दे दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार हाँ मेरा वतन है तो मैं अपनी जिंदगी जीऊँ, मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, तो दुनिया के, बल्कि अपना ख्वाब खत्म किया और खुदा के ख्वाब को पूरा किया। ये जो खुदा का ख्वाब है कि मेरा फैसला कहाँ पे, आदमियों के दरमियान है, खुदा ये चाहता है। तो आज ये खुदा का मैसेज है कि मैं तुम्हारे दरमियान रहना चाहता हूँ। बेशक हमारी अकल इतनी नहीं है कि खुदा की सोच समझ है कि एक समंदर है और हमारी अकल ये एक छोटा सा खड्डा कर दो ना तो वो भी नहीं पूरा भरा जाता, पानी से उसको भी भर लें तो वो भी खाली हो जाता है। लेकिन खुदा की सोच समंदर है, समंदर की कोई इंतहा नहीं है। साइंसदानों ने उसकी समंदर की सहार ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली। इसी तरह खुदा की सोच है समंदर, खुदा का कलाम समंदर है, लेकिन हमें इस बात को जानना जरूरी है। मैं ये वो बात कर रहा था कि तुम्हारा रसूल जो वहां से यरूशलेम इस्राइल से इधर आए, तब ना पाकिस्तान था, भारत नहीं था, बल्कि सिर्फ भारत ही था, पाकिस्तान नहीं था। मतलब ये बात नहीं बना पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान एक थे, है ना? तो आपको भी ये पता है कि एक थे। तो ये जब तुम्हारे रसूल इधर आए तो उन्होंने ये यहाँ पे मनादी किस तरह की है, इसके बारे में भी हमें सीखना है। क्या कैसे मनादी की? तो मुझे जो कुछ पता है, क्योंकि ये मैंने कलाम में पढ़ा नहीं है बल्कि मैसेज से सुना है, तो वो आपको आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। क्योंकि किस तरह ये बाइबल किसने ट्रांसलेट की है? ये बाइबल ट्रांसलेट की है हेनरी मार्टन। वो यूनानी और अबरानी का माहिर बंदा था, मतलब जो यूनानी भी पढ़नी आती थी और अबरानी भी माहिर था। उसकी एज सिर्फ अभी 25 साल भी नहीं थी, 25 साल से भी कम थी, तो अभी जवान था। तो उसने जिंदगी खुदा को दे दी। उन्होंने कहा उनकी शादी था, ये तेरी शादी करते हो? उसने कहा नहीं मैंने शादी नहीं करवाई। वो वहाँ से इधर आ गए। इधर आके उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट की बाइबल, ठीक है, फारसी में की है और हिंदी में की है। मतलब कि वो
यहाँ तक कि वो खाना भी भूल जाते थे बाइबल को ट्रांसलेट करते करते, क्योंकि ये गैर कौमों के लिए ये बहुत जरूरी था। हम भी गैर कौम थे, जो भारत में रहते थे, ये सारी गैर कौमें थी। तो वहाँ से आई वसीयत यहाँ पे, तो यहाँ पे आके ट्रांसलेट हो गई, बाइबल ट्रांसलेट हो गई। तब हमने पढ़ा, क्योंकि हमें अबरानी जुबान नहीं थी आती, यूनानी जुबान नहीं थी आती, तो हमने ये पढ़ी, तो उसकी वजह से हम ये सीखे। अब हम आसानी से इसको पढ़ सकते हैं बाइबल को, और खूबसूरत है, हमारे पास आ ही गया। तो बहुत से लोग, एक जिंदगी ऐसी थी जो हिंदुओं और सिखों से पैदा हो, उसका नाम है साधु सुंदर सिंह वो उन्होंने क्या किया कि वो उनके वसीला से वसीयत बड़ी फैल गई। उन्होंने कहा कि यीशु जी अगर तू है ना, तो आज रात 12 बजे से पहले मुझे मिल ले, नहीं तो मैंने ट्रेन के नीचे आके अपनी जान दे देनी। वो पहले बड़ा मुसीबत को ना तंग करते थे लोगों को, जहाँ पे दुआ हो रही होती थी वहाँ पे गोबर फेंक देते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने इतना तंग किया कि बाइबल मुकद्दस को जला दिया, आग लगा। लेकिन खुदा ने उसे इस्तेमाल करना था, खुदा ने उन्हें चुन लिया, और वो इस तरह से हो गया। उसने कहा कि अगर तू वाकई मसीह है तो आज मुझे मिल रहा। उसने तैयारी कर ली, नहा भी लिया पहले, ठीक है। वो जैसे घड़ी आगे जा रही थी, उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई कि आज मैंने मर जाना है। तो वहाँ से गाड़ी आ रही थी, ठीक है। तो जैसे ही उसका कदम रेल की पटरी से अंदर हुआ है, जैसे उस दिन उसके पीछे से आवाज मार के साथ क्या कुछ नहीं पता है, राह हाथ पर जिंदगी में उतना गलती थी कि राह हाथ पर जिंदगी में हूँ, और कोई मेरे वसीले के बगैर पाप नहीं है। उस बंदे ने यीशु मसीह से मिला है, और यीशु मसीह से मिलने के बाद उसकी जिंदगी चेंज हो गई। उन्हें क्या कर नई बात को सारा कुछ उन्हें छाड़ दिया, इस तरह का एक होगा मैं पा लेता, सारा दुनिया में सारी चीज़ें छाड़ के बस यीशु मसीह ना भी करना रास्ता हो गया। बेहल तो नहीं यीशु मसीह ने दस दिता कि राह पर जिंदगी में मेरे वसीला के बगैर कोई भी नहीं, दुनिया में कोई भी नहीं खुदा से कोई कर सकता यीशु मसीह को अलावा। उन्होंने की किया कि भाजी उन्हें बापू जी ने कहा कि इस तरह नहीं आ रहा, मैं लग गया कि अंधी ने मंगेतर है ना उन्हें भेजना। उन्हें मंगेतर में भेजा, मंगेतर नाल गलबात की मंगेतर ने क्या मैं करना प्यार था। उन्होंने कहा कि दिल मेरे को एक दिल सी, वो दिल मैं यीशु मसीह को दे दिता है, उन दूसरा दिल नहीं है मेरे को जेड़ा मैं दिल देना। तो मतलब कि उन्होंने खत्म कर दिया कुछ छाड़ के, बस चोला पाया तो चले गया मनादी करना। तो हम मनादी करने वास्ते गए ने, एक बंदे नूं कलाम सुनाना सी, वो बंदा ना वो कर रहा सी, वाटी कर रहा, वाटी कहते ना वो खेतों के कट रहे, वो वाटी कर रहा। उन्हें जाके उन्हें कलाम सुनाने की कोशिश की। उन्हें कहा जा तेन नहीं पता है तू मैं काम करने मैंने तंग कर रहा। उन्हें पत्थर फड़िया, साधु सिंह के सिर से मारा, उन्हें सिर से मारने लगा पाया। उन्हें फिर भी उन्हें कुछ नहीं किया, जाके वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो बंदे का सिर से दर्द होगा, वो दर्द कोई नहीं थी। उन्हें आके शाम दस्त की शाम सो गए। उन्हें क्या तू सो, तेरा काम मैं करना, वो मारना उन्होंने सारी दिहाड़ी का काम भी किया, ठीक है। सारा दिन काम करके नाले वो बंदे को समा रखा, ठीक है। अपना भी सिर फटिया लेकिन काम कर दिया सारी दिहाड़ी, सारे दिन काम कर दी। जो बंदा उठा उन्हें कोई और है बंदे से मैं मारिया भी, लेकिन फिर भी इन्हें मेरा काम किया है तो मैनू सवा दिता है। उन्हें कहा यार तू मैंने की दसना चाह रहा है ना। उन्हें दसिया कि यीशु मसीह जो ना वो भी राह मिले मैंने देखा कि यीशु मसीह जिंदा है। की हुआ वो बंदे ने मसीह को कबूल नहीं किया,
ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਕਦਮ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੀ, ਤਿੱਬਤ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਨ ਹਾਈਟ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੌੜਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜਦਾ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਜੋਨ ਹਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਦੁਆ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਦੀ ਸ਼ਰਮਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਖੁਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੰਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਜੋਨ ਹਾਈਟ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹੀ ਜੋਨ ਹਾਈਟ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਐਸੇ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਕੇ ਪਾਸ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਸਿਕ ਦਾ ਅਰਨਾਨ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੈਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਇੱਕ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਮਨਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਆਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ
کہ میں سارے مشنری کا حوالہ دینا اس لیے ضروری سمجھا کیونکہ اسی اگر صرف دعا کریے خدا نے کیا ہے کہ تم دعا کرنے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور آپس میں میل بنانے آئے بھی مجھے کوئی یاد ہے دوسرا بات ہمارا تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے یہ سبق جو ہے نا بہت ضروری ہے جس طرح بھائی تعلیم پانے میں اور یہ بات بہت ضروری ہے بے شک ہم دعا بھی کرتے ہیں اور روٹی بھی توڑتے ہیں اور رفاقت بھی رکھتے ہیں اور ان ساری چیزوں میں ہم مشغول رہتے ہیں ایک کام یہ بھی ضروری ہے کہ اسی اعمال کی کتاب میں پہلے باپ کی 8 آیت میں یہ لکھا ہے پہلے باپ کی 8 آیت میں یہ بھی ضروری ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگا بلکہ یروشلم اور تمام یہودیہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے تب گواہ ہوگے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو بے شک روح القدس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ بات جو لکھی ہے نا بہت ضروری ہے جیسا ہم نے بپتسمہ لیا ہے بھائی نے بھی لیا ہے اور سب نے بپتسمہ لیا ہے لیکن روح القدس کی ضرورت ہے تبھی کام کرے گا جب ہم تمام یہودیہ کریں تمام زمین کی انتہا کریں اس کے گواہ ہوں یہ نہیں ہے کہ صرف مسیح بھائی ملا ہے تو اسے ہی گواہی دینی ہے کہ یہ تم سے زندہ ہے کوئی بھی ملا نا بھلا ہندو ملا مسلمان ملا یا کوئی بھی ملا ہے اسے آپ نے گواہی دینی ہے کہ میں مسیح ہوں اور یہ تم سے زندہ خدا کا بیٹا ہے آمین یہ تھا آج کا میسج آئیے ہم سب دعا کریں اور اس کلام کے ذریعے ہم اس کلام پر سیکھنے والے اس پر عمل کرنے والے بنیں گے سب دعا کریں اس کلام کے ذریعے ہمیں تو 30 گنا 100 گنا پیدا اس کلام کو ہم اپنے دماغ اپنے دل میں اس کو سمجھیں اس کو سیکھیں اور اس سے عمل کرنے والے بنیں ہمیں
हमें कुव्वत दे, ताकत दे, ताकि हम इस कलाम को खुदावंद जिंदगी खुदा बाप जीने दुनिया वाली के बने, कोने कोने तक फैलाए। ऐ खुदा बाप तुम हमें कुव्वत ताकत दे ताकि हम तेरे नाम की गवाही दे सके। ऐ खुदा बाप लेकिन कुव्वत खुदावंद ताकत दे खुदावंद ताकि हम हर एक हमें इंसान को उठाकर उठा खुदावंद 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 तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरा मैं शुक्र करता हूँ। खुदावंद हम जैसे तेरा नाचीन मैं लोगों को शुक्र करता हूँ। अपनी भाषा का इस्तेमाल किया है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद बड़ी बरकत देगा। खुदावंद आज से खुदावंद हम खुदावंद है कि जिंदगी में खुदावंद हर एक जिंदगी करते हैं कि खुदावंद तेरी गवाही को बता सके कि यीशु मसीह तू ही जिंदा खुदा है और खुदावंद हम खुदावंद तुझ पर ईमान लाकर खुदावंद मसीह होते हैं। हम खुदावंद तेरे जैसे बने हैं, तेरे कदमों के पीछे तेरा शुक्र करता हूँ। ऐ खुदावंद यीशु मसीह हम खुदा बाप तेरी ब्लेसिंग को महसूस करते हैं, हम तेरी बरकतों को महसूस करते हैं। ऐ खुदा बाप तू यहाँ मौजूद है, हम तू हमें छू रहा है। मांगते हैं खुदावंद ऐ खुदा बाप हम शिफा मांगते हैं। ऐ खुदा अपने ईमान में हमें बढ़ा, हमारा ईमान हमारी लगन सिर्फ तेरे से हो। ऐ खुदा बाप हमारा प्यार सिर्फ तेरे से हो। तू हमारा तू हमारा खुदावन जिंदा खुदा है। तेरा मैं शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। ऐ खुदा बाप हम सब बढ़ जाए तो बड़ी बरकतें बड़ी नेमतें पाके जाए। और खुदा बाप तू हमारे जरिए सबको बड़ी बरकत देना, नेमतें देना। तेरा मैं शुक्र करता हूँ अपनी गली मोहल्ले के लिए, अपने हम सब के लिए खुदा बाप मैं सुलह और सलामती की दुआ मांगता हूँ। ऐ खुदा बाप तू हम सब में हमारे मोहल्ले में हमसार में सुलह और सलामती रखना और खुदा बाप ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदा बाप हमने सब में जो खुदा बाप दुआ में गुजारी है और खुदा बाप तेरे हुजूर आए हैं, तू हमारी एक एक दुआ पे कान लगा और हमारी दुआ को सुन, हमें मुकम्मल तौर पे आजाद कर ताकि हम तेरे नाम की गवाही दे सकें कि हमारे जिंदा आसमानी बाप ने हमें आजाद किया है, हमें छुआ है। ऐ खुदा बाप तू हम सब के पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर दे। तेरा मैं शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। ऐ खुदा बाप हम सब की दुआ को सुन और कबूल कर। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न करने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। हमारा इबादत का पहला सेशन अभी इख्तिताम पजीर होता है। दूसरे सेशन में जो सिर्फ दुआ का सेशन होगा, हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया।